Yes. Hello, Arshit. Hello, ma'am. How are you? Fine, ma'am. Okay. So, shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Audible? Clearly audible? Yes, ma'am. Perfectly fine. Yes. Good evening, everyone. As GATE 2020 result is declared, you are watching Brightest Academy's Toppers Talk. Today, in Brightest Academy's Toppers Talk, here we have with us Mr. Arshit Mani, who secured All India rank 22 in Gate Metallurgy 2026. He is our live class long term course student of the session 2025-2026. First of all, congratulations to you and your family for your success, Arshit. Thank you so much, ma'am. Yes, one more success story is added in the list of Brightest Academy's topper stock. So, Arshit, tell us about yourself and your education background. Okay, ma'am. Hi, everyone. I'm Arshit Mani, and I have completed my BTech from NIT Rourkela last year, 2025. And last year, I have also given the GATE examination, like with the preparation of 1.5 months. So I got 238 rank, but I wanted a full-fledged preparation, ma'am. So last year, like there was my one college senior who got a very good rank. So actually, I knew him earlier also. So after knowing his result, I just texted him, and then got to know about the Practice Academy. And then, ma'am, from the March, and I have joined the Practice Academy. But till that time, I was in college, ma'am. It was the last time of my college, so I had a lot of things to do. Actually, I was like watching the lecture but not able to revise the lecture. So serious preparation has started when I went back to my home, man. It was in May last week. Then I have some pending lectures, and I have just revised the notes. And from there onwards, ma'am, few months later, I had also a job to start. I had a campus placement. So it was, I would say, a bit tough for me to just go for the preparation with the job. But somehow I managed, I have made the strategy and have taken out the time from where I can, and then got the result. Okay, Arshit, tell our upcoming GATE aspirants who inspired you to give the GATE exam. Again, ma'am, like one of my that the college senior who has just told about the coaching to me. He's like he was preparing for the gate, and I was just like I was confused. Even in the campus placement, I was setting for the non-core companies, Hmm. but after like at the end of my final year, I have decided that I have to go in the core. So like I have decided to give the gate examination, ma'am, and I wanted to go for any like research organization like BARC or DRDO Hmm. or any PSUs too. Okay, Arshit, tell us what timetable you followed for the GATE exam Okay, preparation. Yes. so it was like a bit different for me because I had job also, man. So after coming from the job, it was I used to get tired. So what Hmm. I have changed my schedule of sleeping, man. So again, I started waking up at 4 or 4:30, and I had started to utilize my early morning time because in the early morning you are fresh and you can grasp a lot of concepts and lot of things, so you can remember a lot of things. But after coming from the office, you get tired. So I used to revise my notes and lectures in the morning, and in the evening after coming from the office, I used to watch the recorded lecture. ओके, तो मींस जॉब के साथ साथ भी देखो, मैं सबको अपने फ्रेंड्स को बताना चाहूंगी, जॉब के साथ साथ अगर आप मेहनत करते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है ये। साक्षात हमारे सामने जो है अर्शित मनी हमारे सामने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। और देखो इसने बहुत अच्छे से करा है और ऑल इंडिया रैंक 22 आया है इनका। सो अर्शित मनी बताइए कि आपका जैसे एग्जाम हुआ था जब, तो Yes, ma'am. कितनी आपकी एक्यूरेसी लेवल रही, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए वहां पे?
एक्चुअली मैम मैंने क्वेश्चन तो 57 अटेम्प्ट किया था एंड उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए थे, तो मेरे टोटल 2 और 3 क्वेश्चन आई गॉट सम सिली मिस्टेक्स में। सो उसकी वजह से मेरा मार्क्स 78 के आसपास बना था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अंडर 20 बट इट्स ओके, आई गॉट 22। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। यस एंड मैम। जैसे प्रेपरेशन के टाइम पे आपको पता है कि गाइडेंस और सोर्स ऑफ स्टडी का बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो यस हाउ मैम। यू नो कि आपको कैसा लगा ब्राइटस एकेडमी का लाइव क्लास लॉन्ग टर्म कोर्स, कैसे आपकी हेल्प करी ये कोर्स ने? एक्चुअली मैम क्या होता है कि जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है आपको क्या फॉलो करना है और क्या फॉलो नहीं करना है। तो आपको हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं फॉलो करना है। तो बहुत सारे कंटेंट दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द कोचिंग मैम, बिकॉज़ एंड ब्राइटस्ट एकेडमी का मैंने हिस्ट्री भी देख लिया था कि रिजल्ट पास में बहुत अच्छे रहे हैं, तो फिर ट्रस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं था इस पे। तो फिर मैंने सर को ही पूरा फॉलो किया था मैम। इसके अलावा कोई भी कंटेंट मैंने बाहर से नहीं किया, जो भी सर बोलते थे उसको फॉलो करना था मतलब। एंड क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था मैम कि इतना सर्च करूँ, क्या करूँ? तो इसलिए सर जो बोलते थे बस वही फॉलो करता था। आपका कैसे रहा टेस्ट सीरीज का, कैसे रहा आपका अटेम्प्ट? जैसे आप इतने बिजी शेड्यूल में टेस्ट सीरीज कैसे मैनेज करते थे? मोक आपके जो रहे वो कैसे रहे? अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैम जैसे कि क्या हुआ था कि जो नवंबर एंड तक हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया था, बट मेरे एंड से दिसंबर एंड चला गया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहते थे हम्म। उतने। तो फिर उसके बाद मैंने जनवरी स्टार्टिंग से मॉक देना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले मैंने पार्शियल मॉक देना स्टार्ट किया था एंड देन उसके कंप्लीशन पे मैंने फिर फुल मॉक में। तो फुल मॉक टेस्ट देने की वो 3 घंटा का रहता था। तो वो तो मैं आके ही देता था, ऑल्दो मैं थोड़ा टायर्ड रहता था बट आके देता था। सुबह नहीं हो पाता, 3 घंटे का सुबह नहीं हो पाता था, तो मैं शाम में इसको हम्म। देता था। एंड टेस्ट में भी बहुत चीज़ मैं बोलना चाहूँगा मैम कि जैसे अभी टोटल 10 फुल मॉक टेस्ट होता है, तो उसमें आई हम्म। थिंक सेकंड सेकंड जो लास्ट मॉक टेस्ट था उसमें मेरे को 52 आ गया। ऑल्दो मेरा मार्क्स सही आ रहा था बट उसमें 52 आए तो थोड़ा-सा मेरे को लगा कि ये इतना खराब कैसे हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रोसेस पे फ़ोकस कीजिए, प्रिपरेशन पे फ़ोकस कीजिए, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट पे फ़ोकस मत कीजिए। जो आपके कंट्रोल में है उस पे फ़ोकस करोगे तो आपको ऑफ कोर्स मिल जाएगा। आप खुश रहोगे, आप सैटिस्फाइड रहोगे। दैट इज़ द बिल्कुल, मोस्ट आप इम्पोर्टेंट। अपनी मेहनत पे जो है हुँ, अपनी पूरा विश्वास रखिए, है ना आपके कहने यस, का मतलब? यस मैम। ओके। एज अभी बताइए, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, हुँ, जैसे आप बिजी भी थे, है ना? तो किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करना होता है आपको? क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी सब्जेक्ट्स को? जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हुँ, हुँ। तो मैम टोटल ऐसे कोर सब्जेक्ट्स तो हमारे 6 थे और हम्म। एक एप्टीट्यूड रहता है और एक मैथमेटिक्स। तो कोर सब्जेक्ट्स में भी मैम फिजिकल मेटलर्जी थोड़ा वास्ट रहता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हार्ट ऑफ मेटलर्जी बोला जाता है। तो इस पे ज़्यादा फोकस था मेरा मैम, क्योंकि रिवीजन में मतलब रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट था। सर ने बोला था 5 रिवीजन कर लेना, मतलब हो जाना चाहिए। तो मेरे हो हम्म। गए थे 5 रिवीजन वैसे। मैं क्या करता था मैम, जैसे कि मैं बुक मतलब जो भी नोट्स बनाया था वो रिवाइज़ नहीं कर पाता। मैंने क्या किया था, जिससे क्या होता था कि एक तो नोट्स जो कॉपी में अपन लिखते हैं और दूसरा सर कुछ व्हाट्सएप पे भेजते थे। तो मैंने जैसे मान लीजिए फॉर एवरी सब्जेक्ट आई हैव मेड पीडीएफ कंपाइलिंग माय व्हाट्सएप मटेरियल एंड नोट्स। सो एक पीडीएफ मेरे पास रहता था एंड उसमें पूरा नोट्स कंपाइल रहता था। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट टाइम लाइक व्हाइल ट्रैवल भी मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा फ्री टाइम है या फिर कभी वर्क प्लेस पे मेरे को फ्री अगर बैठा हूँ लंच टाइम में, तो मैं वहाँ रिवाइज़ करता था, टाइम नहीं वेस्ट करता था मैं, कहीं नहीं जाता था। ये इस तरह से यूज़ किया था मैंने। दैट्स वेरी नाइस। और देखिए, आपने टाइम की पूरी पूरी कीमत करी है। और मुझे लगता है आपको देख के जो भी बच्चे जॉब करने के साथ सोचते हैं, नहीं सोचते हैं अपने, मतलब उनका मोमेंटम जो है वो खराब हो जाता है कहीं ना कहीं, ये गेट को लेके, है ना? इतना सोच ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? लाइक मैम सी, अगर आप अपने आप को चॉइस दे रहे हो कि आप पहले सोच ले रहे हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर नहीं कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपके पास यस। चॉइस नहीं है कि अब मुझे था कि जॉब मैं करना चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था। तो उसके साथ ही हम्म। था कि अब कैसे भी करना है बस। तो और निकल जाएगा। इफ यू स्टार्टेड थिंकिंग तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू कम लाइक हैपन। ऐसा हो जाएगा। अगर आप मतलब आप बहुत बड़ा ड्रीम देख रहे हो तो उसको पूरा करने के लिए आपको हुँ, उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस मैम, और यस मैम। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। नो, नो।
और उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने टाइम की कदर करो, है ना? जी, जी मैम, तो जो भी टाइम है उसको यूज़ करना होता है। अच्छा, ये देखो कि आप इवन प्रेपरेशन भी करते थे, जॉब से टायर्ड भी होके आते थे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आती होंगी कि कई बार आप कहते होंगे छोड़ो यार अभी तो बस। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? आई मैम, जिससे वही था कि फाइनल रिजल्ट में देखता था कि मुझे बस ये चाहिए, और लेकिन मैं देखता था मेरे पास ऑप्शन थोड़ी अवेलेबल है, मेरे को करना है इसी में ही करना है, तो कुछ और ऑप्शन नहीं है, बट कैसे भी करना था। तो कभी कभी मैं छुट्टी भी लेता था ऑफिस से। और मोटिवेशन में वही, आप डिसाइडेड, आप प्री डिटरमाइंड हो अंदर से कि आपको करना है, तो आप कैसे भी करोगे। तो कभी 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 ऐसा नहीं लगा मैम, इवन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मैं बहुत अंदर से चाहता था। प्री डिटरमाइंड। मतलब अभी ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसी यस, पे यस मैम। फोकस रखा है। दैट्स हुँ, वेरी हुँ। नाइस। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है अर्शित, ये बताइए हमें। फ्यूचर में जैसे कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मेरा इंटरेस्ट तो ज़्यादा है, बाहर की आरडीओ, और केसेस भी मिलता है तो मैं उसमें ट्राई करूँगा, बट प्रायोरिटी ऊपर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। तो मतलब हम चाहते हैं कि अर्शित को हम बहुत जल्दी साइंटिस्ट की पोस्ट पे देखें। यस, थैंक यू मैम। तो अच्छा, ये शेयर कीजिए हमारे साथ कि जैसे प्रेपरेशन करते टाइम, जैसे ड्यूरिंग द एग्जाम या ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई होंगी आपसे कि जो आप चाहते हैं कि आने वाले बच्चे ऐसी प्रेपरेशन टाइम या एग्जाम टाइम मिस्टेक्स ना करें, तो क्या आप उनको बताना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो सर जो बोल रहे हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर लेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जिस आप इंसान से पढ़ रहे हो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा है, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको मतलब उसके बाद। ब्राइटस एकेडमी ने आपको बहुत हेल्प करा है। हाँ मैम, और मैं बहुत वही ज़्यादा। स्ट्रेटजी जो देते हैं वो आपके फैकल्टी मेंबर, जैसे कि आपके उमेश सर हैं, है ना? हाँ, यस, तो यस मैम, यस सर। उसी को फॉलो करें। हाँ, पहले तो उनको फ़ॉलो कर लीजिए जो भी बोल रहे हैं। उसके हम्म। बाद मैम, जैसे आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट बस देना इम्पोर्टेंट नहीं, टेस्ट का एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, सिले मिस्टेक हो रहा है, हम्म। कॉन्सेप्ट हम्म। वीक है, वो सब नोट डाउन कीजिए, आप साइड में उसको लिखिए, और उसको एनालाइज़ करने के बाद नेक्स्ट टेस्ट में उसको रिपीट मत कीजिए। तो मैं तो मतलब वो किया था कि मैं बना लिया था कि ये सब चीज़ें मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वो मेरे दिमाग में था ये सब नहीं करना है। तो उस हिसाब से फिर मैंने किया मैम। तो आप क्या साथ साथ में क्लियर करते थे या फिर उनको आप जैसे एक मिस्टेक हुई है इकट्ठे पूछ लेंगे, इकट्ठे पूछ लेंगे कॉन्सेप्ट करते थे? अच्छा, क्या सर से बताना मैम? चाहोगे? हाँ, यस। कुछ अच्छा, सर से या फिर जैसे आप ओके, डिस्कशन ओके। सेशन आपका होता होगा या फिर हाँ, व्हाट्सएप पे हाँ। साथ साथ में शेयर करते थे या साथ साथ में पूछते थे? नो मैम, मैं तो सारा लिख लेता था डाउट्स, ओके, एंड देन हम्म। मैं सर से यूजुअली मैम, सर देखिए कि जो भी डाउट होता है, ऐसा नहीं था कि सर वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं, वो मेरा ही मिस्टेक रहता था मोस्टली। हम्म। बहुत कभी-कभी ऐसा होता था कि मेरे को सर से पूछना पड़ता था, बट जब क्लासेस चलती थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछता था, और मेनी अ टाइम इट यूज्ड टू हैपन कि मैं क्वेश्चन पूछने के बाद सोचता था ये तो बहुत सिली क्वेश्चन मैं क्यों पूछ लिया। सर फिर भी पेशेंस के साथ बोलते थे कि रीड योर नोट्स केयरफुली, इट इज़ ऑलरेडी इन द नोट्स। सो आई वुड से सर इज़ वेरी हम्बल मैम। इतना मतलब समटाइम्स तो मैं सोचता सर इरिटेट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं था कुछ। इवन सर अगर कोई मतलब चीज़ जैसे आज नहीं बता पाए तो वीडियो लेक्चर देखते थे कि उन्होंने ऐसा कुछ बताया है, वहाँ पे मेरे को डाउट है, तो देख कर क्लियर करते थे मेरा। तो ये था। ओके, तो अब आने वाले गेट जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्या आपका उनका मंत्रा है जो उनको शेयर करना चाहते हैं? कि मैम, बी कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप डेली पढ़िए। डेली पढ़िए, ऐसा नहीं है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ऑफकोर्स आपको मार्क मतलब रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। एंड गाइडेंस लाइक सक्सेस इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। यू नीड टू नो वेयर यू नीड टू पुट योर हार्ड वर्क। सो जो भी सर बोल रहे हैं, जो भी हम गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए इस चीज़ को, और आपको बस हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए अपने हिसाब से, जैसे आप जॉब में हो या फिर कॉलेज में हो, उस हिसाब से अपने आप को मतलब टाइम मैनेज करिए। सो मतलब मैं बोलूँगा कि मेजर क्रेडिट मैं सर को देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी कर सकता है अगर आप उसको राइट डायरेक्शन दोगे तो, बस डायरेक्शन इम्पोर्टेंट तो है ही। तो सर का काफ़ी क्रेडिट है उन पे जाता है। थैंक यू सो मच।
सो इन्हीं वर्ड्स के साथ हमने अर्शित का बहुत कीमती समय भी लिया है और बहुत कुछ उसने हमारे साथ शेयर भी करा है, जो कि मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अर्शित, जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप जॉब के साथ साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे हैं और बहुत अच्छे से आपने हर चीज फॉलो करी है और बहुत अच्छा रैंक लेके आए हो। देखो, जॉब वाला बच्चा ऑल इंडिया रैंक 22 लेके आया है। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट। थैंक यू So, मैम। Arshit, once again, congratulate to you and your family and wish you a very best for your future. Your hard work really paid off. I थैंक यू am sure your talent will take you to great place and I cannot wait to hear about your future success. थैंक यू सो मच मैम। And with these words, thank you so much, everyone. Thank you so much, Arshit. Thank ओके you. ओके ओके थैंक यू मैम।